आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसमें ये जो है टॉपिक, दिस टॉपिक कम्स फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डीलिंग विद द ट्रिग्नोमेट्री। Trigonometry basically deal with the measurement of the angle, deals with the measurement of angle, and the problem allied with them, and the problem allied with angles. Trigonometric ratio of an acute angle of a right angle triangle. इसके बारे में trigonometric ratio of acute angle, trigonometric ratio of an acute angle of a right angle triangle. Trigonometric ratio of an acute angle of a right angle triangle. Trigonometric ratio of an acute angle of a right angle triangle. Suppose A, B, C are right angle triangle. A, B, and C are, suppose triangle A, B, C are right angle triangle, where angle B equal to 90 degree and angle A less than 90 degree and angle C less than 90 degree. 90 degree less than 90 means the angle A and C are acute angles. In this manner, AB in a triangle AB is perpendicular means P units of triangle BC equal to base means B units. Length is B units and AC is hypotenuse. Hypotenuse means H units. In this manner, angle C equal to theta. Angle C equal to theta. Let angle C equal to theta. In this manner, according to the angle C, AB is high. According to angle C, AB is high perpendicular, BC is base and AC is hypotenuse. According to the angle C, in this manner, sin theta equal to AB upon AC. AB is P but H. Cos theta equal to BC upon
AC means B upon H tan theta equal to P upon B. This is the formula, and in the same way, the reciprocal of sin theta is cosec theta. Theta equal to 1 upon sin theta equal to H upon P. Sec theta equal to 1 upon cos theta equal to H upon B. Cot theta equal to 1 upon tan theta. 1 upon tan theta is nothing but B upon P. ये तो जनरल फॉर्मूला है. यहाँ पे P और H क्या है? बेसिकली P and H are the sides of the triangle. AB upon AC is nothing but AB, BC and AC is the sides of the triangle, and we are taking the ratio of the sides in terms of the sin, cos and tan theta. दूसरा, another approach we are using for the formula square method. Sin theta का स्क्वायर equal to sin square theta. In the same way, cos theta का स्क्वायर equal to cos square theta. और उसी तरह tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होगा. तो इसका ऐसे है, किसी भी साइन थीटा का स्क्वायर या क्यूब इस वैल्यू का पावर उसके इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दूसरा वे ये है कि जैसा कि हम लोग साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन B होता है. अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ H से डिवाइड कर देते हैं. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जब हम H से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? P अपॉन H अपॉन B अपॉन H. P अपॉन H क्या होता है? साइन थीटा, और B अपॉन H होता है cos थीटा. तो हम दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा. इन द सेम वे cot थीटा इक्वल टू क्या है? B अपॉन P. अब इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं H से. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जब हम H से डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा B अपॉन H अपॉन P अपॉन H. P अपॉन H नथिंग बट ये cos थीटा अपॉन P अपॉन H इज नथिंग बट ये साइन थीटा. तो cos थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा. और इससे पहले हम लोग ये भी देख चुके हैं एक पार्टिकुलर एंगल पे वैल्यू कैसे कैसे होता है. जैसे साइन 30, साइन 60, 40 का ये टेबुलर अप्रोच से भी हम दिखा सकते हैं. जैसा कि नेक्स्ट इसी में हम कंटिन्यू करते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू अगर हमारा थीटा गिवन है या ये भी कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स. उसमें क्या होगा कि पार्टिकुलर एंगल स्पेसिफाई होगा. उसके लिए हम टेबुलर वैल्यू को टेबल के फॉर्म बना करके हम आपको दिखा सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर
of some particular angles. These angles may be 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. ये हम ले सकते हैं. तो एक टेबल बनाते हैं. ये थीटा वैल्यू थीटा देते हैं. थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, ये हो जाता 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे. कितना होता है ये देखना है. साइन देते हैं पहले. सबसे पहले साइन थीटा. साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू हाफ, साइन 40 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1. ये साइन के प्रोस्पेक्ट में आ गया. अब कॉस के वैल्यू प्रोस्पेक्ट में देखते हैं. कॉस थीटा, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू हाफ और कॉस 90 का वैल्यू 1. कॉस 90 का वैल्यू 0. दो वैल्यू आ गया. अब टेन थीटा, टेन 0 का वैल्यू 0, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, टेन 45 का वैल्यू 1, टेन 60 का वैल्यू √3 और टेन 90 का वैल्यू इन्फिनिटी बोलते हैं या अनडिफाइंड बोलते हैं. जैसा कि 3 आ गया और बाकी भी यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं. टेन के बाद हो गया कॉसेक थीटा. कॉसेक थीटा, कॉस 0 का वैल्यू अनडिफाइंड बोलते हैं इसको, इन्फिनिटी अनडिफाइंड. कॉसेक 30 का वैल्यू, कॉसेक 30 का वैल्यू 2, कॉसेक 45 का वैल्यू √2, कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3. बेसिकली साइन का इनवर्स होता है. और कॉसेक 1 का वैल्यू, कॉसेक 90 का वैल्यू 1. कॉस हो गया. उसी तरह कॉसेक सेक थीटा का, सेक इसका होता है कॉस का रिवर्स होता है, इसलिए सेक 0 का वैल्यू 1, 2/√3, 30 पे, 45 पे √2 और कॉसेक 60 का वैल्यू हो जाता है 2 और सेक 90 का वैल्यू इन्फिनिटी अनडिफाइंड. कॉसेक हो गया, सेक भी हो गया और कॉट का वैल्यू कॉट थीटा. कॉट थीटा किसका होता है? टेन का इनवर्स होता है. तो इन्फिनिटी कॉट 0 का इन्फिनिटी. उसके बाद कॉट 30 का वैल्यू √3, कॉट 45 का वैल्यू 1 एंड कॉट 60 का वैल्यू हो जाता है 1/√3 और कॉट 90 का वैल्यू 0. Thank you for watching this video. Thanks.